आशीर्वाद लेने आया हूं। बहनों का मैं भाई, बच्चों का मैं मामा हूं और अब तो बूढ़ों का भी मामा ही हो गया। और फिर मैं तो अपनी जनता का आशीर्वाद। India, good evening. You're watching the Election Premier League on Times Now, India's election news headquarters. The states in focus, Rajasthan and Madhya Pradesh. Let's talk about Madhya Pradesh first. Amit Shah, campaigning for the BJP, tore into the Congress's misrule and said that Congress is responsible for Madhya Pradesh having the Bimaru tag. A charge that was countered by Congress's Kamal Nath. Listen to this. आपके सामने दो ही विकल्प, एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। We have Mr. Kamal Nath with us. Mr. Kamal Nath, is this election about the revenge and avenge of the toppling of your government in 2020, and who do you hold responsible for that? I am avenging nothing. I am revenging nothing. I am concerned about the future of Madhya Pradesh. I have devoted my whole life here, and the condition of Madhya Pradesh is known to each and every one. Every section of society is in trouble, whether it is the youth, whether it is corruption, whether it is the farm sector. People are my witnesses. But do you think there's a Scindia factor also? He says that he accepted you within 30 seconds of your announcement as CM, but the leadership didn't value him. Do you think that is a factor in Gwalior Chambal belt? I don't know what leadership he talks about, but under what circumstances he went and the MLAs, what kind of deal they did, I'm not concerned with. That is history. But I do know that 14 months ago in Gwalior we won the mayor's election after 35 years. Morena, which is a suburb of Gwalior, we won. Also, there is a very stinging attack on you that has come from Amit Shah yesterday in Ujjain's rally. He said that everyone welcomed Mahakal Lok corridor except Kamal Nath. How do you see this attack on you? I am the one who built the project, and now they are only resorting to lies. They'll say Ram Temple. Why they bring the Ram Temple? Ram Temple is for each and every one in the country. It's for you, it's for me. It's not the private property of the BJP. It was built with government money. They were the government in power, and this was the desire of everybody to have the Ram Mandir. It belongs to everyone in this country. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan filed his nomination from Budni constituency today and spoke exclusively to Times Now. आज मैं फिर आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ हूं। जनता का पहले मां की कृपा और आशीर्वाद लेके पूजा करके और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है और अब मैं चुनाव प्रचार की सारी जवाबदारी अपनी जनता के ऊपर सौंप के आज ही अभी मैं सोहागपुर जा रहा हूं और सोहागपुर के बाद सिवनी मालवा वहां भी जाऊंगा। चुनाव प्रचार मेरा प्रदेश में फिर शुरू। मेरी जनता संभालेगी बुधनी की जनता और मैं दो है ही नहीं, हम एक हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ है लाडली बहना, उनकी जिंदगी बदली है और आगे बढ़ के 3000 तक जाने हैं। अब तो दीदियों को लखपति दीदी बनाना है मुझे सबको, इसलिए लाडली बहना है मेरी दीदी, बेटे बेटी, किसान नौजवान सब साथ है। गठबंधन की मध्य प्रदेश में टूट गया, सपा बसपा आम आदमी पार्टी सभी लड़ रहे हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सपा आप
कांग्रेस पे भी दिग्गी गुट, सेठ कमलनाथ गुट और एक और निर्गुट। अब ये कितने गुट हैं ये तो भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। अमित शाह जी ने बोला है कि 3 परिवारों का पूरा कांग्रेस हो गई है, 3 परिवारों की। हाँ, ये तो परिवार की साथ ऐसा है कि दोनों ने वहां तो वो स्थापित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, स्टाम्प। असली तो भैया और बहन फसल वो ही काटते हैं। यहां भी पूरी पार्टी पर कब्जा जमा के रखा है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने, और आगे की संभावना भी कांग्रेसियों की समाप्त कर दी। उनकी आगे की पीढ़ी भी तैयार है और वो टिकट भी बांट देती है। इसलिए कांग्रेस पे न कब्जा करके कांग्रेस को निष्प्राण बना दिया है। Sounding extremely confident of a comeback, Times Now joined Chief Minister Shivraj Singh on a campaign trail. आशीर्वाद लेने आया हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अपने शवाब पर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कमान संभाल रखी है। बुधनी पहुंचे हैं, लोगों से सहायता राशि भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा बहनों से उनका जो आत्मीय रिश्ता है वो नजर आ रहा है। हम जगह जगह जहां भी जा रहे हैं बहनें गले लगा रही हैं। हमने एक दृश्य देखा अभी जहां पर एक बहन पैदल चल के आई थी और आके लिपट गई मामा से, अपने भाई से। तो सर, किस तरह का आत्मसात मिल रहा है आम लोगों का? देखिए, सरकार नहीं, हम परिवार चला रहे हैं। ये हमारे परिवार के लोग हैं सब, मेरी बहनें, मेरे भाई, और अंतरात्मा से जुड़े हैं। मेरे अंदर जो भाव है वो भाव उनके अंदर है और इसलिए अपने भाई और बहन मान के ही मैं उनकी सेवा का काम कर रहा हूं और वैसे प्रेम उनसे मिल रहा है। इस चुनाव में क्या आपको अलग है? आप इतने चुनाव लड़ चुके हैं, इतने चुनाव देखे हैं, आपने हैंडल किए हैं, इस चुनाव में क्या अलग है? ये आत्मीयता की पराकाष्ठा है इस बार। विशेषकर बहनों का जो स्नेह और प्रेम है वो अद्भुत है, वो दुनिया में और देश में भी देखने नहीं मिलता। लाडली बहना गेम चेंजर योजना मानी जा रही है इस बार, और जो लाडली बहनाओं का प्रेम है, 1 करोड़ 32 लाख के आसपास आपने लाडली बहनों को राशि दी है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या रिस्पांस आया है अभी तक? लाडली बहना मेरी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, तभी तो बहनें ऐसी कभी निकलती नहीं थी, अब आशीर्वाद देने आती है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम बहनें और जो गांव के लोग हैं जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और ऐसे हम कई सौ किलोमीटर चल रहे हैं और जगह जगह पर भाषण भी हो रहे हैं, जय संबोधन भी हो रहे हैं, लोग अपने क्वेरीज भी, सवाल भी लेकर आ रहे हैं, उन सभी को संतुष्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी आगामी योजनाओं की भी चर्चा मुख्यमंत्री उनसे कर रहे हैं। तो ये जो पूरा चुनाव हम देख रहे हैं, ये एक अलग तरह का चुनाव है। इस पूरे चुनाव में जो जनता है वो बहुत सारे फैक्टर्स इस चुनाव में भी हैं। जैसे लाडली बहना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो मुख्यमंत्री जो 18 साल से सत्ता पे है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रूल आउट कर रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, जनता का प्रेम बरस रहा है और पूरे प्रदेश में बरस रहा है। ये अद्भुत है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया अपनी भाई बहनों और बेटा बेटियों का प्यार देख के। देखो मेरे बच्चे नाच रहे हैं आगे, इनको क्या लेना देना चुनाव से, मुख्यमंत्री से, लेकिन ये मामा के लिए ये सब हो रहा है, तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं जय वीरू की जोड़ी है ये, और कोई गब्बर इसे तोड़ नहीं सकता। आप तो गब्बर कह रहे हैं। अब ये फिल्मी लीडर बने हुए हैं। ये कभी कमलनाथ जी बात करते हैं कलाकार, शिवराज तो कलाकार है और कलाकारों के साथ फोटो उनके होते हैं। देखो, हम तो जनता की सेवा करते हैं, राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। जय वीरू गब्बर इन काल्पनिक पात्रों में हम नहीं जीते। हमारे लिए तो अपनी जनता भगवान है, उसकी पूजा हमारे लिए भगवान की पूजा है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है और उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अब जय वीरू गब्बर, इसका राजनीति में क्या काम?
लेकिन सनातन को लेकर के तो उनका कहना है, कांग्रेस का आरोप कि इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए होता है। सनातन और बीजेपी की ओर से, आपकी ओर से भी कई बार स्टेटमेंट आए कि सनातन विरोधी है। कन्या पूजन को लेकर भी उन्होंने नौटंकी कहा। उनके मीडिया सेल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है 22 जनवरी को और वहां से ऐसे बयान आ रहे हैं। गठबंधन उनने बनाया जो सनातन को गाली दे और खत्म करने की बात करे और राजनीति में धर्म के इस्तेमाल की बात हमसे करते हैं। सनातन हमारी परंपरा है, सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन का ना आदि है ना अंत है। विश्व की का कल्याण हो, ये सनातन है और इसलिए हम सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं। वो सनातन को गाली देते हैं। आरोप झूठे लगाने से क्या फायदा? कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, अब कहते हैं राम मंदिर सबका है। अब राम मंदिर तो अब बन रहा है, पहले कहते थे तारीख बताओ, अब तारीख 22 जनवरी तय हो गई। हम धर्म के लिए धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन जरूर करते हैं। आपका क्या योगदान है? वैसे तो पूरा क्षेत्र आप ही संभालते हैं पूरे चुनाव में और उसके अलावा भी। एकदम अनुचित होगा कि पूरा क्षेत्र मैं संभालता हूं। यहाँ पे सामने सभी कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, सब कार्यकर्ता साथी और परम और समस्त क्षेत्रवासी मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं। और ये स्वयं शिवराज सिंह चौहान है, एक एक व्यक्ति, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, बच्चा, ये सब मिलकर चुनाव मैनेज भी करते हैं और लड़ते भी हैं। देखिए, युवा इस चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इतने साल तक सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखा है। तो युवा के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी आप क्या देखते हैं जब विपक्ष कहता है बेरोजगारी, विपक्ष कहता है महंगाई? विपक्ष जो बेरोजगारी की गुण गाता रहता है, उन विपक्षियों को ये देखना चाहिए कि जहां पर उनकी शासित सरकारें हैं, राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर लें, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वहां पर है। अगर आप अगर आप पूरे एस्टिमेट्स निकाल लें, अगर आप पूरी जानकारी निकालें तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश इन राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी यहाँ पर है। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें करते हैं वो स्वयं इस बात से डरते हैं कि मध्य प्रदेश में इनफैक्ट प्रो इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान जी के पक्ष में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह जी भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इतने सालों से आप देख रही हैं जनता को, ये चुनाव आपकी नज़र से किस तरह से देखा जाए, एक गृहिणी होने के नाते और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते? मुझे तो लगता ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। जिस तरह से जनता का और हमारे लोगों का प्यार मिल रहा है वो एक तरफा मिल रहा है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो अपने आप प्यार कर रही है जनता, हमें कार्यकर्ता हमें प्यार कर रहे हैं। इस बार आपने देखा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार चुनाव में आप मत आइए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और देखा जगह जगह तिलक करके उनको सहयोग राशि भी दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। सनातन को कोई भी छू नहीं सकता। ये अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। वसुंधरा राजे की जगह दिया कुमारी जी को लाया जा रहा है। कांग्रेस कहती है, बहुत पता है उनको हमारी क्या हो रहा है, सपना देख रहे हैं पता नहीं कौन सा वो, उनको उठाइए नींद से। कलेक्टिवली चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, पूरी बहुमत से जीतेंगे। Let's talk about the political fight in Rajasthan. It's a direct, straight fight between the BJP and the Congress, and one of the main contenders fielded by the BJP is a royal. Diya Kumar is a member of parliament but has now been fielded by the BJP in assembly elections, went on a campaign trail. Times Now was with her.
बीजेपी ने उन्हें बहुत आजमाया। सवाई माधोपुर से टिकट दिया जो जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर है और विधायक बनकर वहां से आई। राजसमंद से टिकट दिया गया जो करीब 400 किलोमीटर दूर जयपुर से पड़ता है, लेकिन वहां से भी जीत कर आई। और अब तीसरी बार उन्हीं के घर से जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उनको टिकट दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सांसद दिया कुमारी की, जो इस समय बीजेपी के टिकट पर विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, प्रचार में लगी हुई हैं। दिया कुमारी नाम सिर्फ लोकतंत्र का नाम नहीं है, बल्कि राजतंत्र से भी उनका जुड़ाव रहा है। पूर्व राजघराने की राजकुमारी भी रही हैं। तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल मैं आपसे यही करता हूं, जब राजघराने का नाम आता है, राजकुमारी का नाम आता है, और लोकतंत्र में देख रहा हूं 2 बार आप उस सीढ़ी से वहां तक पहुंची, सदन तक पहुंची, दोनों सदनों में पहुंची, क्या लगता है किस तरीके से इस भेद को मिटा पाते हैं? नहीं, ऐसा कोई भेद नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे जितने भी ये रॉयल फैमिलीज हैं, उनके कोई ना कोई सदस्य पॉलिटिक्स में हैं। तो मुझे लगता है जनता का जुड़ाव बहुत है, क्रेडिबिलिटी फैक्टर भी सबका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली ने, पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया भी है। मैं जैसे जयपुर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर जो भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे हम बात करें हॉस्पिटल की, सेक्रेटेरिएट की, एयरपोर्ट की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल्स की, रोड्स की, सूवेज की, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब चीज़ों की, तो ये सब चीज़ें मेरे ही पूर्वजों ने बनाई थी उस समय। तो क्या है, लोगों का अटैचमेंट बहुत होता है, तो वो एक फर्स्ट टाइम आपको वो चीज़ ज़रूर हेल्प करती है। उसके बाद तो आपका काम ही है, और भारतीय जनता पार्टी काम पे बहुत फोकस्ड है, डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। और जिस तरह से मुझे पार्टी ने सवाई माधोपुर भेजा, उसके बाद राजसमंद भेजा और अब जयपुर, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिली हैं। और मेरे लिए बहुत ही ये एक अनुभव भी रहा है, एक्सपीरियंस भी रहा है, और बहुत सीखने को भी मिला है। अलग अलग क्षेत्रों के वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना एक अनुभव अलग ही है, जो कि जयपुर की बेटी को शायद ही मिलता अगर मैं बीजेपी में नहीं होती। तो ये बीजेपी की खासियत है कि कहीं भी आपको वो चुनाव लड़ाने के लिए भेज सकती है, क्योंकि हमारी जो कार्यकर्ता की टीम होती है वो बहुत सक्रिय होती है, बहुत मजबूत होती है, और उन्हीं के बलबूते में हम लोग हर चुनाव जीतते हैं। आपको जहां से लड़ाया गया, सवाई माधोपुर से लड़ाया, विधायक बने आप वहां से, फिर सांसद बने राजसमंद से, अब तीसरी बार आपको आजमाया जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 बार आजमाने के बाद कुछ विशेष सोचा है, तो पार्टी ने कुछ विशेष सोचा है? देखिए, मैं पार्टी ने क्या सोचा है क्या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया पार्टी ने, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंस, इतने मौके दिए अलग अलग क्षेत्र में जाके वहाँ की जनता की सेवा करने के, और वहाँ से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और जुड़ाव भी है, क्योंकि जब सवाई माधोपुर में मैं एमएलए बनी, वहाँ की जनता से मेरा बहुत अटैचमेंट है। उसके बाद राजसमंद, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का मेल है, और अब जयपुर, जहाँ की मैं बेटी हूँ। अच्छा, आप जयपुर की बेटी भी हैं, और अभी देश की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप राम की वंशज भी, आप बताएं, आपने कागज भी पेश किए थे उस समय, लेकिन अभी पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, सनातन के खिलाफ कई आवाज़ें इस तरह की उठ रही हैं। कहीं रामचरितमानस जलाया जा रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में इस देश के इस माहौल के लिए आप क्या कहेंगी बतौर राम की वंशज? नहीं, बहुत ही ये गलत है। जो भी सनातन के विरोध में इस तरह की बातें कर रहा है, ये हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, वर्षों से इतना पुराना हमारा कल्चर है, और इसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज को सपोर्ट करेगा। ये जो कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसी चीजें, ऐसी बातें कर रहे हैं। सनातन को कोई भी छू नहीं सकता, उसकी निंदा करना एक घोर पाप है, मैं तो मानती हूँ। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है इस बार ये जो आपका क्षेत्र है, ये विद्याधर नगर में आता है, यहाँ से चेहरों का इंतजार होगा या एक जो चेहरा? कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? मिले है कैंडिडेट ही नहीं है कोई। अच्छा, सीताराम अग्रवाल जी ले नहीं पा रहे बेचारे, उनको डर है कि मैं हार जाऊंगा, तो दिया कुमारी जी आएंगे यहाँ पे। तो पिछली बार सीताराम जी को मिला था टिकट, पिछली बार हार गए थे, वो लगभग 30,000 वोट से हारे थे। तो इस बार क्या लगता है, दिया कुमारी बड़ा चेहरा है? बहुत बड़ा चेहरा है और साफ है जीतेंगी वो।